saying that it is buying, selling, transactions, and all, right? But marketing has got a much wider scope than that of buying, selling, and typical transactions. Fine. When we talk about marketing, actually, marketing starts means the scope is so wider that you can say that it starts with creating a demand, creating a demand and fulfillment of demand. Means starting from creating a demand for any product, that means understanding consumers, your research and development, marketing research, innovation, advertising, branding. There is a vast scope of marketing at all. So it is not only about buying, selling. This is the ultimate aim. Means ultimate aim is that the transaction should continue. Means ultimate objective is transaction. But when we talk about marketing at the organizational level, the marketing department centers at the top. Whereas when we talk about the advertisement, then the selling goes definitely at this level where the actual selling process takes place. Fine. Marketing is here, then the strategy, branding, and all the advertisements over here. Right. So marketing aims at this corporate level or at the strategic level. So marketing is more of strategic in nature than tactical and operational. Right. So, but definitely the implementation of the marketing activities encompass in itself the advertising and the selling part. आप अगर मार्केटिंग का ओवरऑल जब हम बात करते हैं ना, तो ये मोर ऑफ स्ट्रेटेजिक, इसका जो इंटेंट है इज स्ट्रेटेजिक. आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी पढ़े हो, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की पढ़े हो ना. तो वी हैव 3 levels ऑफ मैनेजमेंट. द टॉप लेवल जिसको हम लोग कॉर्पोरेट लेवल और द स्ट्रैटेजिक लेवल बोलते हैं, देन द टैक्टिकल लेवल एंड देन द ऑपरेशनल लेवल. फाइन. टैक्टिकल लेवल द मिड लेवल, ऑपरेशनल लेवल द फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट. फाइन. सो ये हो गया आपका द टॉप लेवल. टॉप लेवल मतलब ही है वेयर वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रैटेजी, preparing strategy, policies and all. So the time frame over here, all the decisions or all the planning taken place at this level covers a very wide range of activities which will have an impact on the overall organizational structure. If we talk about the strategies prepared over here, जो भी यहाँ पे strategies बनती है ना, या जो भी डिस्कशन होता है, पॉलिसीज बनती है, वो उसका इम्पैक्ट पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे होगा. राइट. बिकॉज दिस इज द टॉप लेवल, टॉप मैनेजमेंट लेवल हो गई. तो यहाँ पे आप एक चीज समझिए कि ये जो टॉप लेवल की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो टाइम फ्रेम होता है, इट इज मोर देन 5 years. Here when we talk about the top level strategy, we discuss about the growth strategy, the divestment, the investment, acquisitions, mergers. All the broad based strategies are discussed over here. So marketing strategy की जब हम बात करते हैं, वो इस लेवल की ही बात है. जब हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की भी बात करते हैं ना, कि कौन से मार्केट में डेवलप करना है अपने आप को, कौन से मार्केट में पेनेट्रेट करना है, वो स्ट्रैटेजीज आर प्रिपेयर्ड एट दिस लेवल ओनली. But marketing plans are then developed, the advertising strategies and the planning implementation process, all those comes at the much at the means it goes to the lower level, from the upper level to the lower level in the operations. ठीक है. तो lower level आपका operations हो गया. Now theoretically we are going to learn about the marketing, the development of a concept. So first, this is the ICFI study material which is really very good. You can go through this, or you have your own study material, you can go through that also. Marketing is vital to functioning of any business as it generates profits that influences the growth and survival of businesses. Businesses are confronted with social, economic and technological issues in the wake of globalization. Marketing makes the difference by converting the issues into opportunities. This is what makes a difference. Marketing की जब हम बात कर रहे हैं, तो marketing किस तरीके से अलग है, what makes the difference. यहाँ पे issues को opportunities में convert किया जाता है. COVID-19 was an issue. COVID-19 was a pandemic. This was converted into an opportunity by various industrialists बोल सकते हो, MSME operators, entrepreneurs, इनसे आप बोल सकते हो. तो they converted this into an opportunities. So marketing is such a thing which will convert your issues into opportunities. And we all know कि अभी इतने सारे जो change
जो आप वो बिजनेस ले रहे हो, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, सारी चीजें चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। ऑफ कोर्स लिबरल एंड ग्लोबल दो चीज हो गई। लिबरल बिकॉज एवरी कंट्री इज नाउ बीइंग लिबरल, दे अलाउ अदर कंट्रीज टू कम and trade with us, like means we are liberal, we are becoming more and more liberal, like FDIs is allowed in different more sectors. So इसका मतलब क्या, हम और ज्यादा लिबरल होते जा रहे हैं, and because of this liberalization policies more and more companies are becoming global. Globalization, every company can operate, means I can operate from anywhere and can operate anywhere. I can operate from anywhere to anywhere. मैं कहीं से भी कुछ भी ऑपरेट करती हूँ। तो जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, ट्रूली ग्लोबल कंपनी की, सपोज मैं एक इंडियन कंपनी हूँ, मैं एक इंडियन कंपनी हूँ, मैंने एक सेटअप किया जापान में, और मेरे लिए रॉ मटेरियल जो सोर्सिंग हो रही है, हो सकता है सऊदी अरबिया से मुझे रॉ मटेरियल सोर्स करना इजी हो रहा है, तो मैंने वहां से रॉ मटेरियल सोर्स किया। मुझे चाइना से लेबर सोर्स करना, प्रोक्योर करना इजी हो रहा है, तो मैंने वहां से सपोज चाइना में लेबर सस्ता पड़ रहा है, प्रोडक्शन भी मुझे वहां सस्ता पड़ेगा, पर यहाँ पे जो उनके इनोवेटिव मशीनरीज है या टेक्नोलॉजी, वो अच्छा लगा, तो आई प्रोक्योर रॉ मटेरियल फ्रॉम सऊदी, टेक्नोलॉजी फ्रॉम जापान, एंड installed or started my operation in China. So I'm a truly a global company because मेरा origin Indian company है, बट मैं कहीं से भी कुछ भी सोर्स कर सकती हूँ, प्रोक्योर कर सकती हूँ, और कहीं पर भी प्रोडक्शन कर सकती हूँ। एंड डेफिनेटली चाइना में प्रोडक्शन करके आई विल नॉट सेल ओनली इन चाइना, आई कैन सेल इट अक्रॉस द ग्लोब, कहीं पर भी हम सेल कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट ग्लोबलाइजेशन इज। ग्लोबलाइजेशन के कारण इट इज नाउ बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सेसिबल टू, मीन्स एवरीथिंग इज एक्सेसिबल नाउ। आप कुछ भी कहीं से भी बैठ के एक्सेस कर सकते हो। मैं यहाँ से बैठ के यूएस के स्टूडेंट्स को पढ़ा सक रही हूँ, और मैं कहीं के भी स्टूडेंट्स को पढ़ा सक रही हूँ। इसका मतलब क्या है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। we have got more and more access to either you can say the backward chain of the supply chain or the forward chain। तो आप either raw materials की बात करो या customers के तरफ, globalization has made all this thing very easier। In the post-globalization era, companies and marketers are dealing with the rapid technological advancements and the resulting increase in competition through various responses and adjustments। Marketers are following new strategies like customization, target marketing, and integrated marketing। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, so let us move to the definition of marketing। What is the definition of marketing according to AMA? According to American Marketing Association, the term marketing can be defined as the process of planning and executing the conception, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, and services to create exchanges that satisfy individual and organizational goal। तो according to AMA क्या बोल रहा है, मार्केटिंग को किस तरीके से डिफाइन कर रहा है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्शन। तो अल्टीमेटली यहाँ देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट फ्रॉम विच प्रोसेस? इट स्टार्ट फ्रॉम प्लानिंग, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। आप यहाँ पे प्लान कर रहे हो, यू आर प्लानिंग, आप एंटायर चीजों को प्लान कर रहे हो। प्लानिंग क्या मीन्स मे बी एन आइडिया, अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, कोई भी चीज के बारे में प्लानिंग करना, ठीक है, आइडिया जनरेट करना। देन एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्शन, उस चीज को आपने प्लान किया, R&D की, इनोवेट किया, एनीथिंग इज पॉसिबल, एंड देन एग्जीक्यूटिंग, उस चीज को एग्जीक्यूट करना, एंड एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्शन, जो भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया उस कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करना। देन आफ्टर दैट मीन्स यहाँ पे प्रोसेस देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जब हम मार्केटिंग, मैंने पहले ही बोला कि मार्केटिंग मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम आइडिया जनरेशन, मतलब या क्रिएटिंग एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड की बात हो रही है, तो क्रिएटिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे। ये आइडिया की बात कर रही हूँ, आइडिया जनरेशन। तो यहाँ पे आइडिया जनरेशन को मैं बोल सकती हूँ कॉन्सेप्ट, कंसेप्शन, ठीक है। सो एक कॉन्सेप्ट से लेकर, कोई भी एक कॉन्सेप्ट है, जब कॉन्सेप्ट होता है तो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट को नहीं बेच सकते हम, कॉन्सेप्ट को मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको एक्चुअली प्रोडक्ट को मुझे बनाना पड़ेगा, राइट। प्रोडक्ट को बनाना, डिजाइन करना, देयर आर सो मेनी थिंग्स कम्स इनटू पिक्चर। प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्राइसिंग हो गई आपकी, प्रमोशन हो गई, एवरीथिंग, प्रमोशन, प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, till it reaches to the consumer। मतलब starting from your concept creation, then your pricing, promotion and distribution of ideas, goods and services to create exchange and satisfy individual and organizational goal। तो ultimate aim is to create exchanges, right?
अल्टीमेट एम है एक कंपनी का कि वो, एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या एम होगा कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स ऑफर करे मार्केट में जिससे एक्सचेंज हो, ट्रांजैक्शन हो सके, so that individual needs, individual goals and organizational goals are satisfied well. दोनों का गोल्स है, देखो ट्रांजैक्शन होने के लिए, एज आई सेड इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो, वी हैव कंज्यूमर्स एंड वी हैव प्रोड्यूसर्स, बोथ हैव देयर ओन नीड्स, प्रोडक्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के अपने अपने नीड्स हैं, और जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के नीड्स सेटिस्फाई होंगे तभी ट्रांजैक्शन हो पाएगी। ऐसा तो नहीं है मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं सेल कर दी, मेरा नीड्स फुलफिल हो गया, बट मेरा नीड्स फुलफिल कैसे होगा, until unless you are satisfied। जो मेरा कंज्यूमर है उसको भी तो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट खरीदेगा, राइट। कोई फोर्सफुली कोई सामान ज्यादा दिन खरीद के नहीं सेटिस्फाई हो सकता है। तो अल्टीमेट एम ट्रांजैक्शन का है एक्सचेंज दैट सेटिस्फाई इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो मार्केटिंग का जो एंटायर प्रोसेस है ना, उसका एम, फाइनल एम है हर कंपनी का, हर ऑर्गेनाइजेशन का। मैं अगर एक कंपनी स्टार्ट करती हूँ, मेरा एम क्या होगा फाइनली, टू अर्न प्रॉफिट, राइट। बट ये जो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव अगर होगी तो दिस वुड बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। इफ आई सेंटर्स अराउंड ओनली प्रॉफिट, बस प्रॉफिट मोटिव है मेरा, बस उससे हो गया, सो इट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में हम इसको बोल सकते हैं मार्केटिंग मायोपिया। मैं दूरदृष्टि तो नहीं रख रही हूँ ना, आई एम नॉट हैविंग अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ माय कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। मैं मेरा अभी प्रॉफिट कमा लिया फिर छोड़ दो, आगे का आगे सोचेंगे, ऐसा नहीं होता है। अ कंपनी नीड्स टू कंसिडर द प्रॉफिट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, उसको लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में तो फिर मायोपिया हो जाएगा, कंपनी सरवाइव नहीं कर सकेगी। तो लॉन्ग टर्म में सोचने के लिए उसको क्या सोचना पड़ेगा, कस्टमर्स के बारे में, कि कस्टमर्स को क्या ऑफर करें सो दैट कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड, कस्टमर्स आर, और भी ज्यादा कस्टमर्स आर अट्रैक्टेड, कस्टमर्स आर रिटेन। दोनों चीज ही है, कस्टमर को पहले मुझे लाना है, मुझे बुलाना है ना कस्टमर को, कस्टमर्स गेट अट्रैक्टेड। अब सिर्फ अट्रैक्ट करने से नहीं होता है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, अक्वायर करना, उनको रिटेन करना, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मार्केटिंग सेंटर्स अराउंड ऑल दिस एक्टिविटी बिकॉज अ कंपनी हैज टू मेक अ प्रॉफिट इन द लॉन्ग टर्म, ऑब्जेक्टिव शुड बी लॉन्ग टर्म। आप क्या सोचोगे एज एन एंटरप्रेन्योर, आप अगर बिजनेस करोगे आप क्या सोचोगे, व्हाट विल यू थिंक। मुझे अगर एक बिजनेस करना है तो मैं क्या सोचूंगी, अभी कस्टमर्स आ गए चलो ठीक है बस चल जाएगा ना मेरा, ऐसा नहीं चलता है बिजनेस, ऐसे नहीं चलेगा। हमें एवरी टाइम वी हैव टू इनोवेट और वी हैव टू कम अप विथ न्यू सर्विसेज, न्यू प्रोडक्ट, न्यू रिसर्च और डेवलपमेंट टू क्रिएट न्यू मार्केट, capture new market, beat the competitors, competency mapping, competitors mapping, उसके बाद competitors जो strategy है उसको check करना होता है। अल्टीमेटली मेरा गोल क्या होगा, कोई भी कंपनी का लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस, इसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी, मार्केटिंग में इसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। सो तो नाउ पहले क्या था, पहले का मार्केटिंग मैं बता दे रही हूँ। पहले मार्केटिंग में कॉन्सेप्ट, पहले मार्केटिंग थी नहीं, मार्केटिंग वाज नॉट देयर, उसकी हिस्ट्री मैं बताऊंगी। बट अभी नाउ वी सेंटर्स अराउंड दिस 3P, मतलब 3P स्ट्रैटेजी अब हम लोग मार्केटिंग में यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग पहला फोकस होता है प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेट, देन होता है पीपल, नेक्स्ट इज प्रॉफिट। देखो मैंने पहले बताया एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न अ रेवेन्यू और टू मेक अ प्रॉफिट, ठीक है। बट यहाँ पे देखो अभी के डेट में जो हम लोग मार्केटिंग करते हैं, जिसको हम लोग ग्रीन और सस्टेनेबल मार्केटिंग बोलते हैं, उसने पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया थ्रू आउट द वर्ल्ड। द कॉन्सेप्ट हैज बीन नॉट बिकॉज ऑफ कोविड-19, कोविड के कारण नहीं है, कोविड के पहले ही ये था, ग्रीन एंड सस्टेनेबल मार्केटिंग पहले ही आ चुका था। बिकॉज हमें पता है कि प्लैनेट अर्थ को बचाना बहुत ज़रूरी है, ये समझ में आ गया था इन्वायरमेंटलिस्ट और मार्केटर्स को। लेकिन देखो मैंने क्या बताया, प्रॉफिट, मैंने पहले ही तुमको बताया एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है इन ऑर्डर टू मार्केटिंग इकोनॉमिकली सोचो किसी तरह का प्रॉफिट। बट नाउ प्रॉफिट हैज टू बी मेड फॉर द लॉन्ग टर्म, स्ट्रैटेजी ऐसी होगी कि वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो। अभी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कैसे रहेगा, लॉन्ग टर्म में मैं प्रॉफिट अर्न कर सकूं, इसके लिए अभी के डेट में वी फॉलो 3P मॉडल ऑफ मार्केटिंग, जिसको हम लोग ग्रीन एंड सस्टेनेबल मार्केटिंग बोलते हैं।
वेयर वी प्लेस एम्फेसिस फर्स्ट टू प्लैनेट, पहले जो भी काम हम करते हैं उस पे उसका इम्पैक्ट प्लैनेट पे क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट प्लैनेट पे बिल्कुल कम से कम हो, उसका पहले हमें फोकस होता है। सेकंड, मेरे जो भी मैं मार्केट कर रही हूँ, मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, वो प्रोडक्ट का इम्पैक्ट पीपल के ऊपर क्या होगा, लोगों के ऊपर, वो अच्छा होगा बुरा होगा वो देखना है। थर्ड इज माई प्रॉफिट। तो इस तरीके से जब हम सोचते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सस्टेन करने के बारे में सोचते हैं, सस्टेनेंस के बारे में सोचते हैं। तो मार्केटिंग का आज का ये चलन है और ये ट्रेंड है जिसमें हम लोग बिल्कुल लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी रखते हैं, और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी कैन सस्टेन। तो यहाँ पर हो गई आपकी सस्टेनेंस की बात। व्हेन यू सस्टेन देन ओनली यू कैन थिंक अबाउट पीपल एंड देन ओनली यू कैन थिंक अबाउट प्रॉफिट। तो सस्टेनेंस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही प्रॉफिट। जिंदा नहीं रहेंगे तो प्रॉफिट नहीं हो सकती। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स अवर करंट ट्रेंड। पहले हम लोग मार्केटिंग में आ जाते हैं। नाउ मैं जैसे बता रही थी कि मार्केटिंग में व्हाट टू बी थिंक, हम लोग का एंटायर मार्केटिंग फोकसेस अराउंड द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, प्राइसिंग, प्रमोशन, मतलब स्टार्टिंग देखो एंड टू एंड हो गई मार्केटिंग। मार्केटिंग को नहीं बोल सकते कि ये बीच वाला एक सिर्फ काम है, एंड टू एंड मार्केटिंग है। मार्केटिंग की जरूरत हर एक जगह पर है। अगर एक प्रोडक्शन हो रही है, एक डिजाइन हो रही है, तो डिजाइन में भी मार्केटिंग का इनपुट चाहिए आपको। मार्केटर जो मार्केटिंग रिसर्च में वही आपको बता पाएंगे मार्केट में क्या चल रहा है, क्या डिजाइन चाहिए, फिर आप डिजाइन को बोल सकते हो कि हाँ ऐसे डिजाइन आप करो, ठीक है। नाउ ये जो प्रोडक्ट या गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहे हैं, अ गुड कैन बी टर्म्ड एज अ फिजिकल एंटिटी दैट वी कैन टच एंड फील। गुड क्या है, गुड कैन बी टर्म्ड एज अ फिजिकल एंटिटी। गुड मतलब एनीथिंग दैट वी कैन टच एंड फील। फॉर एग्जाम्पल वॉचेज एंड स्पेक्टिकल्स आर गुड्स। अ सर्विस, सर्विस क्या है, इंटेंजिबल। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इट इज इंटेंजिबल ना, व्हाट यू फील इज दैट। तो ये इंटेंजिबल है, इसमें कुछ प्रोडक्ट तो नहीं दे रही हूँ मैं आपको, राइट। Marketing involves creating an atmosphere where an exchange takes place between a buyer and seller. In other words, a buyer gains value for purchasing and consuming a product, and the seller gains value by making a profit. ठीक है, तो मार्केटिंग अल्टीमेटली समझ में आ गया कि मार्केट का ही हो गया। इकोनॉमिक्स में हमने मार्केट पढ़ा था, वेयर द नीड्स ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स आर मेट। वेयर इज मार्केटिंग में क्या हो गया, सीधी सी बात है, मार्केटिंग में आ गया आपका कि एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज विल टेक प्लेस बिटवीन अ बायर एंड सेलर, एंड बायर को एक वैल्यू, वैल्यू जनरेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटर विल क्रिएट अ वैल्यू, वैल्यू जनरेशन। वैल्यू मीन्स व्हाट, अ बेनिफिट। देखो वैल्यू को मैं अगर इकोनॉमिकली समझाऊं, वैल्यू इज इक्वल्स टू बेनिफिट माइनस कॉस्ट। मैं मुझे कुछ बेनिफिट, आई एम ड्रॉइंग अ बेनिफिट। इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ यूटिलिटी, ये जो यूटिलिटी हमने पढ़ा है, तो यूटिलिटी इज द बेनिफिट विच इज कन्वर्टेड इन रूपी वैल्यू। यूटिल्स के रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो वैल्यू इज बेनिफिट माइनस कॉस्ट। आप क्या बेनिफिट डिराइव करो बाय कंज्यूमिंग अ प्रोडक्ट, माइनस कॉस्ट। कॉस्ट इज द कॉस्ट यू आर पेइंग फॉर इट। सो सीधी सी बात है, मैं इसको इकोनॉमिकली भाषा में भी समझा देती हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम प्रोडक्ट एक्स माइनस प्राइस ऑफ एक्स, दिस इज योर वैल्यू। वैल्यू इसको ही बोलते हैं। From a product, what is the marginal utility you are deriving minus the price you are paying for a product, ठीक है। Any consumer will get a value, अब सीधी सी बात है, you will derive value when the the value is equal to benefit minus cost. But at any point when your marginal utility is equals to price of X, this is called consumer equilibrium. This is an important point from the marketer's point of view and from a producer point of view. You need to understand कि कंज्यूमर के लिए वैल्यू मैक्सिमम कब पॉइंट, किस पॉइंट पे वैल्यू इज मैक्सिमम फॉर एनी कंज्यूमर। वैल्यू इज मैक्सिमम व्हेन ही रीचेज अ पॉइंट एट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, व्हेन MUX इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम दैट प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के लास्ट यूनिट को जो कंजम्पशन हमने किया। ये जो मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम प्रोडक्ट एक्स का मतलब क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग लास्ट यूनिट। लास्ट यूनिट से जो बेनिफिट आई इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स। इससे ज्यादा एक कंज्यूमर नहीं परचेस करने वाला, ठीक है। दिस इज द लास्ट स्टेज है।
तो जब तक मार्जिनल यूटिलिटी मुझे ज्यादा मिल रहा है, फाइन. टिल a consumer is getting marginal utility greater than product X, this is the very good. बहुत अच्छा सेगमेंट है, बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा है कि कंज्यूमर को मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिल रहा है देन द प्राइस ही इज पेइंग. ठीक है, कंज्यूमर एंजॉय कर रहा है, तो प्रोड्यूसर कैन डेफिनेटली ऑपरेट एट दिस पॉइंट. बट कंज्यूमर मतलब प्रोड्यूसर जो है वो देख रहा है कि प्राइस अभी कम ही है, ही कैन चार्ज अ हायर प्राइस, और भी ज्यादा वो दाम को बढ़ा सकता है. बट कब तक वो दाम को बढ़ा सकता है? एक प्रोड्यूसर अपने या मार्केटर अपने प्राइस को यहाँ तक मैक्सिमम चार्ज कर सकता है. इससे ज्यादा अगर चार्ज करेगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम हो जाएगी देन द प्राइस ऑफ एक्स. सो डेफिनेटली एट दिस पॉइंट नो वन इज गोइंग टू बाय. तो इफ अ प्रोड्यूसर इंक्रीजेस द प्राइस आफ्टर दिस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नोबडी इज गोइंग टू बाय. इज दिस क्लियर? ये इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं. एज अ मार्केटर यू हैव टू सेट द प्राइस. आपको प्राइसिंग को भी समझना है. अनम्यूट करके बोलिए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? कोस्तवी, मोपाली एंड Yes, fine. फाइन. देखिए, वट एवर यू आर लर्निंग ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रैक्टिकली. एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है अब, बिकॉज वी ऑल नो एग्जामिनेशन तो एमसीक्यू में क्लियर होना ही है. ठीक है, अल्टीमेट एम इज टू अंडरस्टैंड बिकॉज यू हैव टू क्रैक योर लाइफ टाइम एग्जामिनेशन, राइट? तो उसके बारे में फोकस कीजिए. सो दिस इज क्लियर ना कि व्हाई वैल्यू इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यू. दोनों के लिए ये वैल्यू जेनरेशन, क्योंकि अल्टीमेट एम, मैं अगर आपके लिए कुछ वैल्यू जेनरेट नहीं करूं देन व्हाई विल यू स्टडी फ्रॉम मी. तो वैसे ही तो हर प्रोड्यूसर, मैं पतंजलि के प्रोडक्ट क्यों खरीद रही हूँ? आई थिंक वैल्यू इज हायर देन द कॉस्ट आई एम पेइंग फॉर इट. मैं, ऐसा नहीं है कि आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पतंजलि, बट आई एम यूजिंग द प्रोडक्ट. तो मैं क्यों उस प्रोडक्ट को यूज कर रही हूँ? बिकॉज आई थिंक वैल्यू इज हायर फॉर मी. वाई वैल्यू इज हायर? बिकॉज मैंने डाबर के प्रोडक्ट यूज किए और भी कुछ कुछ मैंने कंपनी के प्रोडक्ट देखा, तो मुझे उसका प्राइस हायर लगा. सो डेफिनेटली बेनिफिट इज हायर देन द कॉस्ट फॉर दी पतंजलि, तो मैं उसको खरीद रही हूँ. तो मैं एज अ कंज्यूमर सोच रही हूँ कि भाई मुझे किसमें कम दाम देके ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है. वैसे ही तो हमारे जो प्रोड्यूसर है वो भी तो ऐसा सोचेंगे ना कि क्या प्राइस पेमेंट करूं, या क्या सॉरी प्रोड्यूसर देखेगा कि क्या प्राइस चार्ज करूं जिसमें कंज्यूमर्स आर हैप्पी, और उसके संग वैल्यू जेनरेशन, वैल्यू एडिशन कैसे करें. एक हो गई वैल्यू जेनरेशन, वैल्यू जेनरेट करना, आपके लिए क्या वैल्यू जनरेट किया. सेकंड हो गई वैल्यू एडिशन, व्हाट इज द वैल्यू एडिशन दैट इज बीइंग डन ऑन द प्रोडक्ट. क्या एडिशन किया? जैसे अभी आप देखो, मतलब मैं एकदम टिपिकली डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट यूज करती हूँ आयुर्वेदिक एंड ऑल, तो मुझे पता चल रहा है इसमें ये वैल्यू एडिशन है, इसमें ये एडिशन है, इसलिए इसका प्राइस ये है. तो अल्टीमेटली हमें ये कॉन्सेप्ट को समझना है फ्रॉम अ प्रोड्यूसर एंड फ्रॉम अ कंज्यूमर. आप पहले देखो, आप एक मार्केटर हो, तो मार्केटिंग करने के पहले आपको कंज्यूमर्स के परसेप्शन को समझना पड़ेगा. See, in other words, a buyer gains value by purchasing and consuming a product, and the seller gains value by making a profit. दोनों का ही इक्विलिब्रियम होना चाहिए. अब बायर और सेलर दोनों का मोटिव जो है वो फुलफिल होना चाहिए. अगर आप बोलोगे कि नहीं मैम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा वैल्यू जनरेट करो, लेकिन आप फीस जो है ना वो कम कर दो, तो अल्टीमेटली क्या होगा? आई एम नॉट मेकिंग अ प्रॉफिट, आई एम नॉट फुलफिलिंग माई ऑब्जेक्टिव. सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन नॉट क्रिएट वैल्यू. तो दोनों इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, बायर एंड सेलर दोनों के नीड्स फुलफिल होंगे तभी ट्रांजैक्शन होगा, राइट? सो हाउएवर द एक्सचेंज इज बेस्ड ऑन नीड्स एंड वांट्स. एक्सचेंज तभी होगा नीड्स एंड वांट के ऊपर. तो अब दूसरा जो चीज है जो मार्केटर को समझने की जरूरत है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यू आप समझो. फ्रॉम द मार्केटर पॉइंट, फर्स्ट थिंग इज वैल्यू कॉन्सेप्ट. कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू, जो वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट थिंग एज अ मार्केटर यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है. सेकेंड थिंग, प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है वो नीड्स है या वांट्स कैटेगरी है, दोनों के लिए स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग अलग होगी. अगर एक प्रोडक्ट नीड्स की कैटेगरी में, देन डेफिनेटली उसकी जो डिमांड होगी या वो ऑटोमेटिक, मतलब डिमांड इज इन इलास्टिक फॉर दैट प्रोडक्ट. जो नीड कैटेगरी में उसकी डिमांड तो इन इलास्टिक, इट्स नॉट गोइंग टू इंक्रीज,
इलास्टिक मतलब क्या हुआ, when is the product said, the demand for a product is said to be price elastic when it is affected by the change in the price. इलास्टिक मतलब क्या, इन बढ़ना या घटना, इलास्टिसिटी ऐसे ही बोलते हैं ना कि इलास्टिसिटी मतलब क्या है। हम लोग देखते हैं कितना एक प्रोडक्ट की जो डिमांड है, जैसे मैंने प्राइस चेंज किया, तो प्राइस चेंज किया तो क्वांटिटी डिमांड पहले इतनी थी, अब वो इतनी हो गई, इससे ज्यादा चेंज नहीं होगी। इलास्टिक जैसे होता है ना, यहाँ तक ऐसे एक इलास्टिक है, उसको खींचो तो और थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है, बट इससे ज्यादा नहीं खींचेगा, वो फिर टूट जाएगा ज्यादा। तो अल्टीमेटली फॉर एनी परसेंटेज चेंज इन वन वेरिएबल, जैसे कोई एक वेरिएबल है, लेट अस टेक एनी वेरिएबल, सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन एनी वेरिएबल, ठीक है, मैं एनी वेरिएबल ले रही हूँ बिकॉज ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कि डिमांड कितना परसेंटेज बढ़ेगा या घटेगा, बिकॉज डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स, सो मार्केटर नीड टू कंसिडर ऑल दोस थिंग कि भाई ये जो इलास्टिसिटी है, जैसे नीड्स प्रोडक्ट, जो नीड्स वाले कैटेगरी की प्रोडक्ट है वो तो इनइलास्टिक है, वो तो बढ़ने घटने वाली है नहीं। जैसे नमक, नमक का दाम आप बढ़ा भी दो तो हम कम नहीं खाने वाले, कमा भी दो तो हम ज्यादा नहीं खाएंगे, अल्टीमेटली इट्स इनइलास्टिक, जितना जरूरत है उतना ही खाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बहुत रिलेटिव इलास्टिक है, ज्यादा नहीं, तो वो भी आप देख लो, और मतलब ऑलमोस्ट नेसेसिटी आइटम्स में आ गए। वांट्स कैटेगरी नॉर्मली होती है लग्जरी आइटम्स, तो लग्जरी आइटम में जो इलास्टिसिटी है वो इलास्टिक होता है, बिल्कुल इलास्टिक, ठीक है। तो इलास्टिक प्रोडक्ट कैटेगरीज में मार्केटर मस्ट कंसिडर कि भाई मार्केट सिनेरियो क्या है, लोगों की इनकम कैपेसिटी क्या है, उस हिसाब से वो दाम बढ़ाएंगे या घटाएंगे। जैसे अभी का जो करंट सिचुएशन आप देख लो मार्केट में, पैसे के फ्लो बहुत ज्यादा नहीं है, और है भी तो लोग उसको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग लग्जरी आइटम्स ज्यादा नहीं खरीद रहे हैं लग्जरी आइटम्स में, लेकिन अभी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट एंड ऑल मिल रहा है। सो अल्टीमेटली ये आपको देखना पड़ेगा कि यूटिलिटी, नाउ यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी मीन्स व्हाट, क्या, यूज। अब ये जो यूज है, मार्केटर किस तरीके से यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट की यूटिलिटी किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब मार्केटर्स को इस चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि मार्केटर्स यूटिलिटी कैसे क्रिएट करें, यूटिलिटी फॉर द कंज्यूमर। जैसे वैल्यू जनरेशन है ना, वैल्यू जनरेशन टू सम एक्सटेंट इज रिलेटेड विद दिस यूटिलिटी, बिकॉज द हायर द यूटिलिटी, आप देख लो इसको, हायर द यूटिलिटी, हायर इज द वैल्यू फॉर द कंज्यूमर। एग्जाम्पल ले लो, कोई ब्यूटिशियन है, ठीक है, जिनका कोई ब्यूटिशियन है या हेयर ड्रेसर है, लेट्स से उसके लिए एग्जाम्पल ले रही हूँ, उसके लिए जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है वो उसकी एकदम बहुत हाई यूटिलिटी प्रोडक्ट्स है, नीड्स है उसके लिए, तो उस जिसके लिए एक प्रोडक्ट नीड्स है, उसके लिए वो प्रोडक्ट यूटिलिटी जो है बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे है। मेरे लिए वो प्रोडक्ट नीड्स नहीं है, वो लग्जरी वाली आइटम हो गई, ठीक है, तो वो क्या हो गई, मेरे मेरे लिए उसकी यूटिलिटी कम हो गई। ऑन दी कॉन्ट्रारी मुझे एक क्वेश्चन बैंक चाहिए या एक बुक चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, जिसकी यूटिलिटी लेवल मेरे लिए बहुत हाई है, मे बी फॉर अ ब्यूटिशियन इट इज नॉट मच वर्थ, तो मैं उसके लिए ज्यादा पेमेंट करूंगी, पर वो नहीं करेगा। तो मार्केटर्स नीड टू अंडरस्टैंड दिस यूटिलिटी वैल्यू एंड देन क्रिएट्स यूटिलिटी अकॉर्डिंगली। तो मार्केटर किस तरह की यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, एक हो गई आपकी फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मतलब मार्केटर कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एक कंज्यूमर के लिए। जैसे हो गई फॉर्म यूटिलिटी, एक चीजों को नया शेप देना, नया तरीका देना, उसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। जैसे एक डिजाइनर वेयर, एक डिजाइनर एक चीजों को कितने अच्छे से डिजाइन कर सकता है, वो हो गई फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है। फिर हो गई आपकी टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड पोजेशन यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी सीधी सी बात है, वो डोमिनोज वगैरह क्या करते हैं कि आपको 20 मिनट्स में देंगे ना 30 मिनट्स में, ऐसे कुछ है। तो टाइम यूटिलिटी आपके टाइम को बचा रहे हैं, आपके ऑन मैंने सर्विस डिलीवरी आपको हो रही है, टाइम यूटिलिटी हो गई। फिर हो गया आपका प्लेस यूटिलिटी, जहाँ चाहिए आपको वहाँ पे मिलेगा, वो हो गई प्लेस यूटिलिटी। जो अभी तो डिलीवरी है ना, ऑनलाइन डिलीवरी, तो वो हो गई। या अब हो गई आपकी पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी मतलब इट इज जस्ट द यूटिलिटी यू गेट बाय पोजेसिंग सम प्रोडक्ट। जैसे अगर मैं एक गाड़ी खरीदती हूँ, तो डेफिनेटली मैं अगर गाड़ी खरीदती हूँ तो वो गाड़ी मैं खरीदूंगी, तो आई विल पोजेस इट एंड आई विल यूज इट। तो मैं उसके पोजेशन, मैंने वो गाड़ी मेरे पोजेशन में होगी एंड आई यूज इट, तो वो जो यूटिलिटी है वो मेरी यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी, ठीक है।
इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, इसके जो एमसीक्यूज हैं वो भेजूंगी ना। द इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग किस तरीके से आया, ये जो मार्केटिंग की बात आज मैंने की, इसके अलावा मैंने 3P के कॉन्सेप्ट को भी बताया। तो मार्केटिंग आज सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट हाउ डिड इट इवॉल्व, किस तरीके से आया, ऐसा तो नहीं ऐसे ही आया होगा, ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री कल करेंगे।